I thank God for today, मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ uh, especially for the songs we sang. It was really a blessing to me. और आज के जो गीत हमने गाए सच में वो गीतों से मुझे बहुत आशीष मिली आज। And especially the song Yet Not I, but और खास करके वो जो गीत इंग्लिश में हमने गाया कि मैं नहीं लेकिन मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है, for Christ to work through me. लेकिन यीशु मसीह है जो मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा कार्य करता है। So recently I've been thinking about conscience. What we also we heard about it in the kids session yesterday. और इन दिनों के अंदर मैं विवेक के बारे में सोच रहा था, बच्चों की सभा के अंदर भी मैंने इस बारे में हमने सुना। And a couple of instances at my workplace which triggered this. और खास करके मेरे काम की जगह पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई। So a couple of instances, for example, some vague answers we give to our managers where it is neither yes nor no. और खास करके हम ऐसे ही हमारे मैनेजर जो होते हैं उनको हम ऐसे ही जवाब देते, वो हाँ में भी नहीं होता, वो ना में भी नहीं होता। It is like a grayish kind of answer where the manager is also confused. I mean, there's an impression going to him that maybe Titus is doing it, but in my conscience I haven't done anything. और हम हमारे मैनेजर को इस प्रकार से दिखावे करने के लिए शायद कई बार ऐसे ही जवाब उत्तर दे देते हैं हाँ में, लेकिन मेरे विवेक के अंदर, मेरे भीतर से मैं उस कार्य को नहीं करना चाहता। For example, when I've been given a certain task to finish. और एक उदाहरण के रूप में जब मुझे काम खत्म करने को दिया गया, Titus, we lost your voice. Hello. Yeah, please go ahead. Yeah, so there's a task given by my manager and he asked me if I finished, but I say I am doing it, but actually I haven't started. और कई बार मेरे मैनेजर ने अगर मुझे कोई काम दिया हो और वो मुझसे पूछता है कि क्या मैंने उसको खत्म किया उस काम को, और मैं उसको कहता हूं कि हाँ मैं उसको कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैंने उस काम की शुरुआत ही नहीं की होती है। So when I say I'm doing it, it is either I'm starting to do it or I'm actually doing it on the verge of completion. और जब मैं उसको कहता हूं कि मैं कर रहा हूं तो मैं सच में उसको कर रहा हूं या उसको खत्म करने की अवस्था में वो काम है। But my conscience brings me that Titus, it's not that, you haven't even started as yet. और मेरे विवेक के अंदर ये इस प्रकार आया कि मैं टाइटस, तूने अभी भी ये काम शुरुआत नहीं किया है। Or on another instance where you have a con call for a meeting or maybe a session. और दूसरे घटना के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस कॉल है या कोई सेशन है किसी और के साथ, लोगों के साथ। And maybe I've attended for maybe 5 or 10 minutes. और शायद मैंने 5 और 10 मिनट के लिए उसको अटेंड किया। And when I have to give the attendance the next day, I say that I attended the meeting. और जब दूसरे दिन मुझे उसके बारे में बताना होता तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया था। But again, my conscience pricks me that Titus, you actually haven't attended the entire meeting. और तुरंत वहीं पर जो हमारा विवेक, जो मेरा विवेक जो होता है, मुझे वापस बोध दिलाता है कि पूरी टाइटस तूने पूरा मीटिंग अटेंड नहीं किया था। So what impression I'm giving my manager is that Titus has attended the meeting, the entire meeting. लेकिन मैं मेरे मैनेजमेंट को इस प्रकार की छवि दे रहा हूँ कि मैंने तो पूरी मीटिंग अटेंड की है। Yeah, but then my conscience says, no, Titus, you've only attended 5 minutes, not the entire meeting. लेकिन मेरा विवेक मुझसे ये कहता है कि टाइटस तूने पूरी मीटिंग नहीं, लेकिन 5 मीटिंग उस मीटिंग का अटेंड किया था। So here the Spirit spoke to me saying that, you tell them that you haven't even, either you are doing the task or you attended the meeting only for 5 or 10 minutes. Don't tell them you've attended the meeting. A vague answer. और मेरा विवेक मुझको ये कहता है कि मुझे उस वहां पर सच बोलना है कि अगर मैंने 5 मिनट अटेंड किया है या मैं कुछ काम खत्म कर रहा हूँ या शुरुआत किया है, ये ऐसे ही ऊपरी मुझे जवाब नहीं देना है। But it's very easy working from home, far off from where your other manager and other people sit, and to give a vague answer where your manager doesn't even know. और घर पर काम करते हुए, जैसे हम घर से काम करते हुए हमारे मैनेजर हमको जानते नहीं है, तो ऐसे ही ऊपरी ऐसे ही जवाब दे देना बहुत ही आसान हो जाए कि मैं कर रहा हूँ या हो रहा है, इस प्रकार से। Yeah, but maybe you're giving a good impression to your manager, but I think you're doing something to your life which is very harmful. और आप शायद अपने मैनेजर को एक अच्छी छवि दे रहे हैं इस प्रकार बोल के, लेकिन अपने जीवन के साथ कुछ नुकसानकारक आप कर रहे हैं। Maybe I'm saying maybe it's not a lie for me. शायद ये मेरे लिए झूठ नहीं होगा।
No, that's what I think. It's not a lie for me. I'm just telling you I'm doing it. It is partially true. और मैं शायद इस प्रकार सोचता हूँ कि ये झूठ नहीं है, शायद मैं इसको थोड़ा थोड़ा तो काम इसका कर ही रहा हूँ मैं. Yeah, but honestly, when the conscience prick you, you know it's wrong. It's the lie. लेकिन जब आपका विवेक आपसे बात करता है तो ये सच में गलत है, ये झूठ है. So these instances in a couple of weeks has really taught me a couple of things when I'm working from home. और जब मैं पिछले सप्ताह में घर से काम कर रहा हूँ तो ये सारी घटनाओं ने मेरे जीवन में सच में मुझे मेरे विवेक से बात की. So one is for your own conscience sake, and second thing is even if no one is watching, it is God who's always there, who's watching. और पहला, सबसे पहला कि हमारे विवेक के खातिर, और दूसरा कि अगर कोई देखता भी नहीं लेकिन परमेश्वर के खातिर. The question is it in your conscience that it's possible to sin? Yes, it is possible. और क्या हमारे विवेक के अंदर पाप करना संभव? हाँ, ये संभव है. Yeah, so I like to share a small story, a short story. और एक छोटी कहानी मैं आपसे बांटना चाहता हूँ. So there was an old monk who used to manage a temple. और एक बहुत ही एक बूढ़ा एक साधु था जो एक मंदिर की रखवाली करता था. And he had few students who he used to teach them. और कुछ थोड़े से उसके विद्यार्थी थे जिनको वो पढ़ाता था, ये साधु. And he was getting very old, and he told the students that it's very hard to bring in food and money. और बहुत बूढ़ा वो हो रहा था. उसने अपने विद्यार्थी तो इसका कहा कि अभी बहुत ही मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और पैसे और भोजन लाना बहुत ही कठिन बात हो रही है. So he told the students, you know what, there's a town close by with a lot of rich and wealthy people. और उसने अपने विद्यार्थियों से कहा कि पास में एक शहर है जहाँ पे बहुत ही धनी लोग रहते हैं और वहाँ पे खाने पीने की सारी सहूलियत है. So you go to that place and you can steal the wallets and steal the vegetables and fruits from the vendors without anyone watching. और वहां पर उसने कहा अपने विद्यार्थियों को, उस शहर में जाके तुम वहां पे लोगों के बटुए जो है या फिर वहां पे जो खाना की चीजें है, सब्जियां है, तुम किसी को कोई ना देखते उसको तुम चुरा लो. So you steal when no one is watching. If someone is watching, you do not do anything. You do not steal. और उसने उन विद्यार्थियों से कहा कि जब कोई तुम्हें देख रहा है वहां पे तब तुम चुराना मत, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा तब उन चीजों को तुम चुरा लेना. But the students said that no, master, this is not what you've taught us. You've taught us not to steal. और विद्यार्थियों ने उसके साधु से उनसे कहा, उससे गुरु से, कि आपने हमें इस प्रकार नहीं सिखाया कि हमको चोरी करना चाहिए. But the monk said, no, I'm getting old and there are no supplies, so you have to go and do it. और जो साधु बाबा है वो कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुमको जाकर मैंने जैसा कहा वैसा करना ही होगा. So the students reluctantly went out into the streets, and the monk was watching them. और बिना मन के जो है वो ये विद्यार्थी वो शहर में, जैसे उन्हें साधु ने कहा था इस प्रकार करने के लिए, वो शहर में जाते हैं. And when the monk turned back, there was one student who was in the corner standing with his head down. और वहां पर जो साधु खड़ा था, वहीं पर एक लड़का भी खड़ा था जो अपना सर झुकाकर वहां पर खड़ा हुआ था. Titus, we lost your voice. Titus, your voice is not coming. You can hear me? Now I can hear. Yeah. Yeah. So the monk asked his student, that one student who was in the corner, that why didn't you go with your friends? और वो कोने में जो लड़का खड़ा था सिर झुकाकर, वो साधु उसको पूछता है कि तू अपने दोस्तों के साथ शहर में चोरी करने क्यों नहीं गया, यहाँ पे क्यों खड़ा है? Don't you want to help your friends? और क्या तू अपने जो दोस्त है, मित्र है, उनकी मदद नहीं करना चाहता? So he said, I do, master, but you said that we had to steal without being seen. और वहां पर उसने कहा कि हाँ मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपने जैसे कहा कि गुरु हमको चोरी करना है बिना किसी के देखते हुए, कोई हमको देखे नहीं, इस प्रकार. And I know that there is no place on earth that I would not be seen, for I would always see myself. लेकिन वो ये लड़का इस प्रकार कहता है कि धरती के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पर मुझे कोई ना कोई देख ना पाता, लेकिन हमेशा जो है मैं अपने आप को देख पाता हूँ. So what this boy was actually saying is that even if no one is watching, my conscience is there. It's going to prick me.
और ये लड़का इस प्रकार कहने की यहाँ तक कि कोई मुझे देख ना पाता हो, लेकिन मेरा विवेक जो है वो मुझे वहां पर बोध दिलाता है। And second thing is, God is always watching. और दूसरी चीज जो है वो परमेश्वर हमेशा हमको देखता है। So no matter what we do, we always have a part of ourselves that is quietly watching. और कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन का कोई एक भाग है जो हमको शांति से, गुप्त रीति से हमको देखता है, हमारा निरीक्षण करता है। And that spirit in us, that conscience, it knows what is right and what is wrong. और वो हमारे भीतर जो आत्मा, जो विवेक है, वो जानता है गलत क्या है, सही क्या है। For example, in Romans 9 verse 1, it says that my conscience testifies with me in the Holy Spirit. और रोमियो उसका 9 अध्याय वचन 1 में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 9:1, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। So my conscience testifies with me in the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा में मेरा विवेक जो है वो गवाही देता है। So I may feel that I do things and then no one knows, but my conscience testifies and God is watching. और मैं सोचता हूँ कि मैं जो करता हूँ वो कोई देख नहीं पाता होगा, लेकिन मेरा विवेक जानता है, और वो पवित्र परमेश्वर जो है उसे देखता है। So not only at workplace, but maybe in our conscious, we may be thinking evil about someone or have an unforgiving attitude or have pride. और हो सकता है हमारे विचारों के अंदर किसी को बिना माफ न करने वाला आत्मा होगा, या एक घमंड की आत्मा होगी। Thinking evil about someone, unforgiving attitude and pride, maybe these things. और किसी के बारे में बुरा सोचना या माफी ना करना, या ऐसी कोई बात हमारे अंदर घमंड की बात हो सकती है हमारे भीतर। And you feel that no one is watching, your parents, your brothers, your sisters in church, no one is watching, but actually you're killing yourself. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें ऐसा लगता होगा कि कलीसिया में, परिवार में, या कहीं पर भी कोई हमको देखता नहीं, लेकिन आप अपने आप को शायद धोखा देते हैं। It says that because of faith and your conscience, your life is a shipwreck. और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे विवेक के भ्रष्ट हो जाने से तुम्हारा जो विश्वास रूपी जहाज जो डूब जाता है। For example, in the Old Testament, we all know the story of Abimelech and Abraham. और हम पुराने नियम के अंदर अबीमेलेक और अब्राहम की कहानी को जानते हैं। In Genesis 20, और उत्पत्ति उसके 20 अध्याय में we know the story when Abraham goes to Gerar. और जब यहाँ पर अब्राहम वहां पर जाता है, and he thinks that these guys are very strong, and Abimelech is going to kill all of us, so I'm going to tell him that Sarah is my sister. और यहाँ पर जब अब्राहम जो अकाल के वजह से जब मिस्र की ओर जाता है, वहां पर गरार जो होता है, वहां पर अबीमेलेक जो राजा है बहुत ही सामर्थ्य होता है, वो उसे डर लगता है कि वो शायद हमें मार देगा। वहां पर झूठ बोलता है कि ये मेरी पत्नी को अपनी बहन बताता है। Well, partially it is true. Sarah was his sister, but more she was his wife. और ये आधा सत्य इसको बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा वो उसकी पत्नी थी। And when Abimelech took her as a wife, we know that God had punished the entire city. God had closed all the wombs. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अबीमेलेक ने सारा को अपनी पत्नी होने के लिया, तो वहां पर परमेश्वर ने सारे उस देश को वहां पे दंड दिया, उनकी कोख को बंद कर दिया। But when God spoke to Abimelech in his dream, that verse really blessed me. और जब परमेश्वर ने अबीमेलेक को स्वप्न के द्वारा बात करी, इस वचन ने मुझे बहुत ही आशीष दी। In verse 6. और वचन 6 में, and God said to Abimelech in a dream, yes, I know that in the integrity of your heart you have done this, and I have also kept you from sinning against me. Therefore I will not let you touch her. और 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। So here we see that Abimelech, in his integrity of his heart, in his honesty and in his attitudes, in his conscience, he is not sinned. और यहाँ पर हम देखते हैं अबीमेलेक के बारे में, उसकी मन की खराई को देखते हैं, उसके विवेक के अंदर उसने पाप नहीं किया है। And God has helped him to not sin. और परमेश्वर ने उसकी मदद की ताकि वो पाप न करे। So here this integrity of the honesty of his heart. और यहाँ पर उसकी मन की खराई या ईमानदारी को हम देख सकते हैं। That helped him, that protected him. और इसने ही उसको बचाया और उसकी सुरक्षा की। So a couple of verses. One is Acts 23 verse 1, when Paul says that perfect conscience to God, Paul says that he had perfect conscience to God until today. और यहाँ पर
पौलुस Hello. यहाँ पर कहता है 26 वचन के अंदर 26 प्रेरितों के काम की उसने परमेश्वर के सामने आज के दिन तक एक अच्छे विवेक को बनाए रखा है। Imagine Paul, what a life he had, that he tried to maintain perfect conscience. और देखिए पौलुस के जीवन के बारे में सोच के देखिए कि एक सिद्ध विवेक उसने अपने जीवन में बनाए रखा। So that is also my goal, to have perfect conscience in life. और वही मेरे जीवन का भी मैं उद्देश्य रखना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन के अंदर मैं हर एक यत्न करूं ताकि मैं एक सिद्ध विवेक को मेरे जीवन में रख सकूं। I like to share one verse and close, which is Hebrews 10. और इब्रानियों 10 से एक वचन मैं बांटना चाहता हूं। इब्रानियों उसका 10 अध्याय, Hebrews 10 verse 22-23. उसका 22 और 23 वचन। So this is kind of my prayer. और ये मेरी प्रार्थना के एक समान है। इब्रानियों 10, 22 और 23। Yes. Let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, from he who promised is faithful. तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। So we have to try to maintain a perfect conscience, और इसलिए हमें सारे यत्न करना है ताकि हम हमारे विवेक को सिद्ध बनाए रखें। and we have to draw in full assurance, having faith. और हमें पूरे निश्चय के साथ उस विश्वास के अंदर आना है। And he says, he who has promised is faithful. God has promised is faithful. So God will help us, have a clean conscience. और जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा और विश्वास योग्य है, वही हमारी मदद करेगा ताकि हमारे पास एक शुद्ध विवेक हो। So these two verses are my prayer. Amen. और ये दो वचन जो है मेरी प्रार्थना है। आमीन। Yeah, I really praise God. परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। And may God give us really, heart and the mind and such a conscience that we should repent and know more and more about Him. और सच में परमेश्वर हमें ऐसा हृदय, ऐसा मन दे कि ताकि हम ऐसा विवेक रखें ताकि हम और भी मन फिराकर उसके पास में आ सके। So I was thinking also the same throughout this week. God was saying actually since last 1 month about the consciousness and considering my imaginary God in my life, that I have repented and God has forgiven me in my life. के अंदर मैं खासकर अपने विवेक के बारे में ही सोच रहा था कि मेरे काल्पनिक विचारों के जीवन के अंदर जहां पर मैंने मन फिराया, परमेश्वर ने मुझे माफ किया है। Okay. So there is one verse which really touched my heart in Judges chapter 16. और न्यायों की पुस्तक उसके 16 अध्याय में verse 15. न्यायों 16 उसका 15 वचन। We know this story actually. We read many times about Samson and Delilah. और यहाँ पर ये वचन हम जानते हैं, इस कहानी को, समसून और दलीला के बारे में इस कहानी को हम जानते हैं। So I was just meditating, and one thing which I observed in between life of Samson and the life of Joseph in Genesis chapter 39. और यहाँ पर जब मैं इस वचन का मनन कर रहा था तो मैंने समसून के जीवन से और यूसुफ के जीवन के बारे में जो उत्पत्ति में लिखा है कुछ चीजों को मैंने यहाँ पर देखा। One thing which I observe is verse 15. It says that when then she said to him, "How can you say I love you when your heart is not with me? You have mocked me these 3 times and have not told me where your great strength lies." And it came to pass when she pestered him daily with her words and pressed him, so that his soul was vexed to death. And he told everything about his strength and all that. We read further. और वहाँ पे 16 न्यायों 16-15 में हम इस प्रकार पढ़ते, दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगता, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया, मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। फिर अगर हम आगे पढ़ते हैं कि देखे कैसे समसून ने उसको सारा अपने जो ताकत का भेद उसे बता दिया। And verse 19 says that when she lulled him to sleep on her knees and called for a man and had
him shave off the 7 locks of his head. Then she began to torment him, and his strength left him. 19 वचन में आगे कहता है, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटे मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया. So I was thinking that is a temptation, one type, as in we can consider in our life that this temptation when comes, how we have to cope up, how we have to face it. और मैं इस बारे में सोच रहा था कि हमारे जीवन में आने वाले एक परीक्षण के समान ये हो सकता है कि इस परीक्षण का सामना हमको किस प्रकार हमको करना चाहिए. So that was also, God reminded me one verse in chapter 39, Genesis chapter 39, verse 10. और उत्पत्ति 40:10 अध्याय के अंदर एक वचन से प्रभु ने याद दिलाया. Chapter 39. Chapter 39, verse 10. और उत्पत्ति उसका 39 अध्याय उसका 10 वचन. So it was as she spoke to Joseph day by day that he did not heed her to lie with her or to be with her. और वहां लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे. And we know that when she caught Joseph, he fled outside, and because of that he went to prison, and he endured hardship. It was a plan of God. और हम आगे देखते हैं कि कैसे वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर वहां से वो भाग निकलता और उसके कारण उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है. But in Samson's case, it is different. He attached to the that temptation. He failed and he lost his strength. लेकिन इससे विपरीत हम समसून के जीवन में देखते हैं कि वहां पर वो जो स्त्री है उसके साथ वो लगा रहा, उस परीक्षण में हार जाता है और उसने अपना बल वहां पर खो दिया. So I was thinking, Lord, daily verse it is written day by day. So temptation always comes in my life. Also, I see that many times. For example, sexual temptation. Other things are also coming. Like someone if speaks rudely to me, so I feel that I should. I tempt that I should also speak like that. और हमारे जीवन के अंदर भी यहाँ पर दोनों घटनाओं के अंदर प्रतिदिन शब्द का इस्तेमाल किया गया है. हमारे जीवन में प्रतिदिन हम परीक्षणों का सामना करते हैं. शायद वो सेक्सुअल एरियाज में हो सकता है, कोई भी हमसे क्रूरता के साथ बात करता है तो परीक्षण आता है कि मैं उसको तुरंत उसी बात के अंदर मैं उसको उत्तर दे दूं. But I need to be careful, and God told me one thing that you should keep a watch on your heart. And one thing which really keeps me, God is giving grace that it is keeping me from falling in this sin is that reading the word of God. और इन दिनों के अंदर हमें सावधान रहना, इन पापों के अंदर गिरना नहीं. इन दिनों के अंदर परमेश्वर वो अनुग्रह दे रहा है एक चीज के द्वारा कि इन पापों में ना गिरो, वो है परमेश्वर का वचन. So I just practically I just want to share that if I read the word of God, meditating sometime, though it is a small passage or like that, really like that temptation, though come daily, it may be anger or anything, like that woman who's coming to Joseph and telling, lie with me. और हो सकता है ये परीक्षण हो सकता है, क्रोध हो सकता है, कोई भी अनेक अलग अलग प्रकार के ये परीक्षण प्रतिदिन हमारे जीवन में उस स्त्री के समान जो यूसुफ के पास आकर प्रतिदिन उससे कहती है कि मेरे साथ सो, इस प्रकार के परीक्षण हो सकते हैं. So I praise God that we can't read word day and night, as Bible says that day and night you have to meditate on the word of God, but we can day and night at least put that something what we read in morning or evening in my heart, and just remembering while doing work in home, or just taking lunch or tea or like that, and just keeping that thought in my heart. और कई बार वचन के अंदर जिसे दिन रात हमको बाइबल के परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना है. शायद हम व्यवहारिक रूप से इस प्रकार नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे कामकाज में या हमारे लंच को लेते तब उन विचारों को, उन वचन को हमारे मन में हम अध्ययन या मनन करते रह सकते हैं. So definitely this keeping me going forward throughout this month, and I praise God for that. Just I'm learning by looking other people also, godly people in our church. और यही चीज है जो मुझे आगे बढ़ने में सहायता करता है, और मेरे आसपास मेरे कलीसिया के अंदर जो ईश्वरीय लोग हैं उनकी ओर मैं देखता हूँ. And as I said regarding conscience, I need to be really conscious about that what I am saying, it should be reality in my life. Otherwise I will think that
I have repented and God has forgiven me. It's like imaginary thoughts, imaginary repentance, imaginary forgiveness I will feel. और जिस प्रकार टाइटस ने जिस प्रकार बताया कि हमें हमारे विवेक के बारे में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी वास्तविकता के साथ वो होना चाहिए. So there is one last verse I want to share, 2 Timothy 2 verse 20 to 22. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय. God was telling me one word regarding vessel. और यहाँ पे बर्तन के बारे में परमेश्वर एक वचन से बात करता है. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 21 और 22 वचन. And it is written that, but in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. And he was giving another, Paul was giving Timothy, though he was, maybe he will be at 20 or 25 at that age, that he was giving encouragement in verse 20 that flee also youthful lust. Yeah. और हम देखते 20 वचन से आगे, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काट मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर कोई अनादर के लिए. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, हर भले काम के लिए तैयार होगा. और वो तितिस को जो जवान होगा, शायद 20 या 25 उम्र का होगा, उससे कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग. Yeah, so that is one thing which God is telling me this throughout these days, that I should keep myself, pure and try to live a life, pursue to live a life which may glorify God. Otherwise, I will think that if I fail and I will not repent, it means that I left my all strength and it will be all useless. और मैं यही चाहता हूं कि इन दिनों के अंदर जैसे मैं अपने आप को इन सारी बातों से पवित्र करूं और जवानी की अभिलाषाओं से भागूं और मन फिराऊं. So that my life will be useful, at least to glorify God. ताकि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सके और परमेश्वर की महिमा हो सके उससे. So I am praying that Lord make me a vessel really, so that you may use it for honor and for the blessing of church, other people, and may glorify your name. और प्रभु मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे ऐसा बर्तन बना ताकि तेरी महिमा के लिए उपयोग आ सकूं, कलीसिया के लिए प्रभु मैं उपयोगी बन सकूं. Yeah, may God help us. और प्रभु हमारी सहायता करे. Really blessed to hear the brother speak. और भाइयों को सुनकर मैं बहुत आशीषित हुआ. Something that was coming to my heart the last month was, how much God loves me and how much I love Jesus. और पिछले महीने में कोई एक विचार जो बार बार मेरे मन में आ रहा था वो ये था कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है और मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ. We know it from our heart that God loves us. He died on the cross for us. हम हमारे मनों में जानते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए उस क्रूस पर मरा. We even sing, kid songs like Jesus loves me, this I know. और हम जो बच्चों के गीत है वो भी गाते हैं कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, ये मैं जानता हूँ. Hello, Vishal? Yes. Yes, so we know God is faithful. He loves us, tremendously, that He could send His Son Jesus for 33 years, to please His Father just for our sakes. और हम जानते हैं कि यीशु परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमसे प्रेम करता है और उसने यीशु मसीह को हमारे लिए यहाँ इस पृथ्वी पर 33 वर्ष सिर्फ हमारे लिए भेजा. He does not want us to perish. और वो ये नहीं चाहता कि हमारा नाश हो. And there's something that God is teaching me, that do I am faithful and do I love Jesus? और ये चीज है जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, क्या मैं विश्वास योग्य हूँ, क्या मैं उस यीशु से प्रेम करता हूँ. It's because it says in 1 John 4:19, we love because He first loved us. क्योंकि हम पहला यूहन्ना 4:19 में पढ़ते हैं, हम उससे प्रेम रखते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया. He chose us before this foundation of the earth. इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले उसने हमसे प्रेम किया.
You know, it was His doing that we are here today. और ये उसकी मर्जी है, उसका काम है कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं. And that's why I want to love Him, because He died on the cross for my sins. और इस वजह से मैं उससे और प्रेम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे पापों के लिए मरा. I want to see how much He has forgiven my sins. और मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसने मेरे पापों को कितना क्षमा किया है. That I want that simple and pure devotion to Him. और मैं वो सरल और शुद्ध भक्ति चाहता हूँ उसके प्रति. One verse was coming to my mind in 2 Corinthians 11 verse 3. और एक वचन जो मेरे मन में आ रहा था वो था 2 कोरिन्थ उसका 11 और 3 वचन. It says in verse 2. और वहाँ दूसरे वचन, या गो अहेड. For I am jealous for you with a godly jealousy, for I betroth you to one husband, so that to Christ I may present you as a pure virgin. और दूसरे वचन में वो लिखता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं. Something was God was speaking to me on that line that, you know, for I betroth you to one husband. और परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें एक ही पुरुष के लिए मैंने तुम्हारी बात लगाई है. So I am, you know, engaged to Christ. I am betrothed to Him. When He comes, I'll be married. और मेरी यीशु मसीह के साथ मानो मंगनी हो गई है, और जब वो आएगा तब मेरा उसके साथ विवाह होगा. And it is only to one person, only to Jesus Christ. और ये जो बात है वो सिर्फ एक व्यक्ति से हुई है, वो सिर्फ यीशु मसीह से संबंध है. That's how I want my love to be. और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रेम भी इस प्रति हो, इस समान हो. But many times you read in the next verse that Satan is always ready to deceive us from this. और हम अगले वचन में देखते हैं कि शैतान हर समय तत्पर होता है, तैयार होता है हमें इससे भ्रमाने के लिए. This one love to Christ, He is ready to, you know, take it apart. कि हमारा जो एक प्रीति है सिर्फ यीशु के प्रति, वो उससे हमें बहकाना चाहता है. And He will deceive us. He will, you know, lead us astray. It says in verse 3 that with His craftiness, but I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. और वो हमें भ्रमाता है, वो हमें बहकाता है. और तीसरे वचन में वो लिखता है कि परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए. We know the passage in Genesis chapter 3. और हम उस शास्त्र भाग को जानते हैं जो उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में है. You know how Eve was deceived by the serpent. और हम जानते हैं कैसे हवा को उस शैतान ने बहकाया. He told Eve that, you know, he told Eve exactly opposite of what God told Eve. और जो परमेश्वर ने हवा से कहा था, सर वो जो सांप है वो उसके बिल्कुल विपरीत उससे कहता है. He told Eve, you will not die. और वो सांप उससे कहता है कि तू जरूर नहीं मरेगी. That's what even Satan tells us right now, that, you know, these little things in your life, you know. और आज शैतान भी हमें यही कहता है कि तुम्हारे जीवन में ये जो छोटी छोटी चीज है, You will not die. You know, you can do this. You can compromise here. You can compromise that. You won't die. और शैतान हमसे कहता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम यहाँ कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, वहां कुछ कर लो, तुम नहीं मरोगे. You know, you can watch these things. You can do these things. Nothing's going to happen to you. तुम इन चीजों को, इन चित्रों को देख सकते हो, तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, तुमको कुछ नहीं होगा. That's how Satan is leading us astray from the simplicity devotion to Christ. और ये कहकर शैतान हमें हमारी जो एक सरल और भक्ति होनी चाहिए यीशु मसीह के प्रति, उससे हमें दूर ले जाता है, बहकाता है. And that's how we are unfaithful to a faithful Father. और Can you repeat? That's how we are unfaithful to a faithful husband. और इसी ऐसा करके एक विश्वास योग्य पति के प्रति हम अविश्वास योग्य हो जाते हैं. Because we have said, you know, we are born again. We have said we are Christians. But now, are we faithful enough, you know, to lead that life? क्योंकि हम कहते हैं कि हम मसीह है, हम कहते हैं हमने नया जन्म पाया है, पर अब क्या हमारे जीवन में हम उतने विश्वास योग्य है? Jesus said, you know,
in Matthew, he said, "Love the Lord with all your heart." और यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे मन से प्रीति कर। Pleasing the Father, do we love Him and do we obey His commandments? और क्या हम इस पिता से प्रेम करते हैं और क्या हम उसकी आज्ञाएं मानते हैं? Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments." और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। You know, you look at a husband-wife relationship. और अगर हम एक पति पत्नी के रिश्ते को देखते हैं, हेलो, Yes, Michelle. yeah, I lost your voice. Yeah, go ahead. Yeah. So if you look at that relationship, you know, you'll always expect them to be, you know, oneness in love. और अगर हम उस रिश्ते को देखते हैं पति पत्नी के, तो हम देखते हैं कि वो हर समय एक होते हैं। Michelle, I lost you. Yeah, can you hear me? Hello. Hello, Michelle. Yeah, you can hear me now. Yeah, it's breaking off. Oh, now is it okay? Yeah, okay. किरण भैया ठीक है, आप कर दीजिए। Yeah, Jonathan. Am I clear? Yeah, clear. Yeah. So, you know, the husband will always expect, you know, all the love from the wife and vice versa. और पति जो है हमेशा अपनी पत्नी से सारे प्रेम की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार पत्नी भी उसी अपेक्षा को करती है। And they'll want to please one another. और ये पति और पत्नी जो है हमेशा एक दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हैं। This is how even, you know, I want to live a life with Christ. और इसी प्रकार का जीवन में यीशु मसीह के साथ जीना चाहता हूँ। I want to love Jesus with all my heart and I want to please Him only. और पूरे हृदय से मैं परमेश्वर से प्रेम करना चाहता हूँ और उसको प्रसन्न करना चाहता हूँ। Just think of a, you know, wife who is not faithful to her husband. और ऐसी पत्नी के बारे में सोच के देखिए जो अपने पति के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। And that husband is really faithful, loves the wife very much, but the wife is not faithful, the bride is not faithful. और पति जो है बहुत ही विश्वास योग्यता से अपनी पत्नी से वो प्रेम करता है, लेकिन जो दुल्हन जो है वो पति के प्रति, उसके दुल्हे के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। The husband will be distorted in his heart, he'll be sad. और पति जो इस बात को देखकर बहुत ही अपने हृदय में खेदित या दुखी हो जाएगा। I was reading Hosea chapter 1. और होशे की पुस्तक, I won't go through the whole story, but it just here in verse 2. which chapter? Hosea chapter 1. होशे उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन। So the story of Hosea is basically God commanded Hosea to go and marry a prostitute. और इस कहानी को हम जानते हैं कि होशे से परमेश्वर बात करता है कि एक वेश्या से जाकर विवाह कर ले, इस प्रकार वो कहे। Just to illustrate God's love for Israel. और क्योंकि वो परमेश्वर अपने इस्राएली लोगों के प्रति वो अपने प्रेम को प्रदर्शित करना चाहता था। And the passage really spoke to me, saying that, you know, even though God commanded Hosea to take a prostitute as a wife, still Hosea loved. और यहाँ तक कि बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने होशे से कहा कि वो एक वेश्या को अपनी पत्नी कर ले और उससे कहा कि वो होशे उससे प्रेम करता है। And the wife used to go out, you know, night after night to, you know, do her go for prostitution. और लेकिन वो होशे से विवाह करने के बाद भी ये पत्नी जो उसकी होती है, जो वेश्या जो होती है, हर रात को वो बाहर वो वेश्या का काम करने के लिए वो बाहर जाती है। And but you know, it says there in the next chapters that, you know, God is faithful. और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। That He will bring her back. और वो परमेश्वर उसको वापस लौटा लेकर आएगा। So, something that was coming to my mind that, you know, God loves me. You know, He did everything for me on that cross. Jesus loves me. और एक चीज जो मैं याद कर रहा था कि सच में परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसने उस क्रूस पर सब कुछ किया ताकि वो मुझे अपना प्रेम दिखा सके। And when I decided to follow Him, am I that faithful?
और फिर मैंने भी उसका अनुसरण करने का निर्णय किया, लेकिन क्या आज मैं उसके प्रति ऐसा विश्वास योग्य हूँ? Am I doing what pleases the Father? और क्या मैं परमेश्वर पिता को जो प्रसन्न करता है वो चीजें करता हूँ? Johnny, we lost your voice. Hello, you can hear me now? Now we can hear. Yeah, so, am I clear? Yeah, can you repeat? Yeah, so, what was I saying is, so am I pleasing to the Father? और क्या मैं अपने पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन जीता हूँ या नहीं? Or am I living a life, an adulterous life or an idolatry life? और क्या मैं एक मूर्ति पूजा का जीवन या वेश्या वृत्ति वाला ऐसा कोई जीवन में जी रहा हूँ? Where I'm saying I'm married to Christ, but night after night I'm going, in prostitution, going and loving other things, loving the world, loving money, loving watching filthy movies. और मैं कहता हूं कि मेरा यीशु मसीह से विवाह हो गया, लेकिन प्रति रात को मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो मुझे पसंद है, या धन से, प्रेम से, या जो मूवीज मुझे देखनी है, वो सारी चीजों के पीछे मैं जाता हूं. I want to please him, by obeying him with all my heart. और मैं अपने पूरे हृदय से उसकी आज्ञा का पालन करते उसको प्रसन्न करना चाहता हूं. In James 4:4 it says, "You adulteresses, do you know?" I'll just read it. James 4:4. और याकूब 4:4 में लिखा है, "You adulteresses, do you know that friendship with the world is hostility towards God?" और वहां पे लिखा याकूब 4:4 में है, व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? Yes, sure. It says that you adulteresses, I cannot, if I want to be with Christ Jesus, if I want to be friends with God, I cannot be part of this world. और इसी प्रकार से अगर मैं परमेश्वर पिता के साथ बने रहना चाहता हूं तो मैं संसार के किसी भी भाग का हिस्सा नहीं बन सकता. So I really want God to, help me and give me His grace and fill me with His Spirit, so that when He comes, I'll be on fire burning for Him. और मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, उसकी आत्मा दे, जब वो आए तो मैं उसके लिए वो जलती हुई आग मेरे अंदर, वो धुन मेरे अंदर बनी रहे. When He comes, I want to be ready like the 5 virgins who had their oil and their lamps were burning. I want to be ready for Him. और जब वो आए तब मैं तैयार रहना चाहता हूं उस 5 बुद्धिमान कुमारी के समान जिनके दिए में तेल था. And as it says in 2 Corinthians, it says to be a pure virgin for Him. और इस दूसरे कुरिन्थी में लिखा है कि हमें एक निर्दोष या झुर्री रहित दुल्हन के रूप में उसके सामने रहना है. God started this good work. It says in Philippians 1:6, He started this work. और फिलिपियो 1:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस भले कार्य को हमारे जीवन में आरंभ किया है. I'll just read it. Philippians 1:6. फिलिपियो उसका 1:6. That He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. और मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा. God put this desire in my heart to love Him. और वही उस इच्छा को मेरे हृदय में डालेगा ताकि मैं उससे प्रेम कर सकूं. And I want to, give Him control that He will perfect it until that day. और मैं उसको अपना नियंत्रण देना चाहता हूं ताकि उस दिन तक वो मुझे सिद्ध बनाए. Temptations will come. और परीक्षण जरूर आएंगे. Johnny lost your voice. Hello. Yeah, can you repeat? Temptations will come because to test our faith. और परीक्षण जरूर आएंगे ताकि हमारे विश्वास की उसके द्वारा परख हो सके. Temptations are there to test our faithfulness towards Him. और हमारे विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति जो है वो परखने के लिए परीक्षाएं या परीक्षण आते हैं. And we know that God is faithful. We read it in 1 Corinthians 10:13. और पहला कुरिन्थियों 10:13 के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है. And I trust Him that that He won't send a temptation that is overwhelming for me. और हम इस बात पर भरोसा करते कि हमारे सहने से बाहर किसी परीक्षा की अनुमति हमारे जीवन में वो नहीं देगा. And I know that He will plan an escape in every temptation. He will हर परीक्षण के अंदर वो निकास का रास्ता मेरे लिए तैयार करेगा जरूर. And I want to obey Him in everything He says.
हर बात जो वो कहता है उसमें मैं उसकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। It says in 1 Thessalonians 5:24 that God is faithful. He is faithful. Second, 1 Thessalonians 5:24. दूसरा थिस्सलुनीकी 5:24। Sorry. 1 Thessalonians 5:24. Faithful is he who calls you, and he also will bring it to pass. आपका ना पहला थिस्सलुनीकी 5:24, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा और वह ऐसा ही करेगा। He has called us to have a sanctified life entirely and preserve us completely. In the previous verse it says. और उसके पहले वचन में लिखा है कि उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है और हम पूरी तरह से निर्दोष और सुरक्षित बने रहे, इसलिए उसने बुलाया है। We have a faithful God. We sing that song. What a faithful God we have. और हमारे पास एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम उस गीत को भी गाते कि हमारे पास एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। We love, and He loves us, abundantly. और वो भरपूरी के साथ बहुतायत से हमसे प्रेम करता है। And I want to, it's only through His grace. It's only through Him that I can, be a faithful servant. और केवल उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके द्वारा ही मैं उसके विश्वास योग्य दास बन सकता हूँ। Amen. आमीन। I thank Lord for what I've heard today. Can you be louder, bit louder? Yes, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ जो बातें आज उसने हमसे बात की है। And thank you, Johnny, for sharing such a wonderful message on how God loves us. और जॉनी धन्यवाद कि वचन को बांटने के लिए कि कैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। So what I was going to share was somewhere on this, like a continuation to Johnny, what he shared. और जो जॉनी ने बताया उसी के आगे बढ़ते हुए मैं कुछ उसी विषय संदर्भ में बांटना चाहता हूँ। So I was, something that God was teaching me throughout this week and, throughout the month was to have faith in it. और पिछले सप्ताह और महीने के अंदर जो परमेश्वर सिखाने की कोशिश मुझे कर रहा है कि उसके अंदर प्रभु पर मुझे विश्वास रखना है। And not a like a shaky faith, but like a very firm faith. और ये हिलने वाला, ये डुलने वाला इस प्रकार का विश्वास नहीं, लेकिन बहुत ही स्थिर विश्वास। We see what is going around, around our surroundings, what is going around throughout the world, the pandemic that has been attacked. और हम देखते हैं हमारे आसपास आज संसार के अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार का संक्रमण या किस प्रकार की ये रोग बात हो रही है। And everyone is panicked, though it be Christians or though it be, unbelievers, believers, everyone is panicked, right? और हर कोई व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी या विश्वासी न हो, हर कोई व्यक्ति डरा हुआ है। At this moment of time, what God was teaching me was to have a strong, firm faith over it. और इन दिनों में, इन समयों के अंदर परमेश्वर ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं परमेश्वर के ऊपर एक बहुत ही दृढ़ या स्थिर विश्वास में करूं। We can see every day a news coming around, the number are rising, whatever they, a false news. We can't trust any of those news. और बहुत सारी खबर हम आसपास देखते हैं कि ये प्रतिदिन ये नंबर जो संक्रमण का ऊपर बढ़ रहा है, बहुत सारी झूठी खबरें भी आती हैं। हम सारी चीजों के ऊपर भरोसा शायद नहीं कर सकते। But the only thing that we can do is to have trust in Lord. That's it. लेकिन एक चीज हम जरूर कर सकते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। And that faith that, nothing can go wrong when we have His back. और ये विश्वास कि जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो कोई गलत नहीं हो सकता। That there is a parable of having like a story in Bible, to have at least a faith like a mustard seed. We can do many miracles if we have just like a faith a size of a mustard seed. और वचन के भाग के अंदर दिखाया गया कि राई के दाने के बराबर अगर विश्वास है तो बहुत सारी अद्भुत बातें हम कर सकते हैं या देख सकते हैं। But I say that, even though if I have that mustard seed size of a faith, but I should be firm in that. और यदि मेरे पास उस राई के दाने के समान छोटा सा विश्वास हो, लेकिन वो बहुत ही स्थिर और मजबूत होना चाहिए। That it shouldn't be like, any of the, a devil's snare or anything like that, and I be shaky about it. और ये हिलने वाला या शैतान के कोई चाल का इस प्रकार नहीं होना चाहिए। There is a word in Psalm 23:4 where the psalmist say, और भजन संहिता 23:4 के अंदर भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता है, yeah, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me.
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। Your rod and your staff, they comfort me. तेरे सोटे, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। This is such a comforting word for me right now. और ये अभी कितना प्रोत्साहन देने वाला ये वचन है। If I can imagine myself, yes, I am walking through this valley of death. और मैं अपने आप के बारे में कल्पना कर सकता हूँ कि हाँ, मैं जरूर इस घोर अंधकार से भरी तराई से होकर गुजर रहा हूँ। Yes, I'm walking through this pandemic. और ये पैंडेमिक जो ये रोग जो आप हमारे आसपास देख रहे हैं, उससे मैं गुजर रहा हूँ। But when I have my Lord, nothing can touch me. लेकिन ये महामारी के बीच के अंदर परमेश्वर मेरे साथ में, कोई मुझे कुछ भी छू नहीं सकता। The second thing was what was clicking to me was, uh, it is to have trust in the Lord, and uh, it is like giving all the controls to the Lord to happen what is going to happen. और दूसरी चीज परमेश्वर पर भरोसा रखना है और पूरी तरह से अपना नियंत्रण परमेश्वर को दे देना, चाहे कुछ भी हो जाए। Like we should allow Him to work in our lives. और हमें परमेश्वर को अनुमति देना है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। In this morning, Samuel brother shared a message in the youth group. He shared, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. और वहां पर एक यूथ ग्रुप के अंदर एक मैसेज भेजा गया जहां पे लिखा था कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन पे परमेश्वर पर भरोसा रखना। I truly believe in this, that whatever is happening or whatever happens in our daily life, we should not take it every time in a negative manner. और जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, हमेशा उसे हमें नकारात्मक रूप से नहीं लेना है। We should take it as a positive manner. For a sword to be a sharp sword or a mighty sword, it has to go through with the beating. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें सारी चीजों को सकारात्मक रूप लेना है। एक तलवार जो है, अगर उसको बहुत ही धारदार अगर करना है, तो उसको वहां पर उसको ठोका जाना बहुत जरूरी होता है। It has to undergo that beating. It has to undergo that heat. और उसको ठोकना पड़ता है, उसको उद्धार करना पड़ता है। Likewise, if God needs to work in my life, He has to break me. He has to, bring negative things so that I pass on that. और इसी प्रकार परमेश्वर मेरे जीवन के कार्य करने के अंदर मुझे उसको तोड़ना पड़ता है और मुझे इन हालातों से वो गुजरने देता है। Like what Biju brother prayed was also nice, that he said Lord knows everything. और जैसे भाई बीजू ने प्रार्थना की कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। Lord knows that there would be a pandemic. Lord knows that there would be lot of death that's going to happen. Lord knows there would be a lot of panicky situations. और परमेश्वर पहले से ही जानता है कि ये महामारी होने वाली थी, इतने लोग संक्रमित हो गए, इतने लोग मरने वाले हैं, मृतक होने वाले हैं, ये इतने लोगों के अंदर इतने लोग, हर जगह पे डर होने वाला है। Absolutely, He knows everything, but still, what I have to do is to look at the very positive thing about it and to look forward for the Lord to to fulfill His will. और परमेश्वर सब कुछ पहले से ही जानता है, लेकिन मुझे परमेश्वर की ओर देखना है ताकि वो अपनी इच्छा को पूरा कर सके। During the end times, when Jesus was about to get crucified, it states in Matthew 16. और मत्ती 16 के अंदर यीशु मसीह का जब क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसके पहले ही the verse is from 16, 22, 23. और उसका 23 और 24 वचन में हम पढ़ते हैं। Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it you, Lord, this shall not happen to you." But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. और मत्ती 16, 22 और 23 में कहता है इस प्रकार, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न कर, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। Just to give a gist behind this, the saying was, Jesus was speaking to his disciples that what is going through, what he is about to go through, with all the difficulties, and how he is going to resurrect after 3 days. और इसकी पृष्ठभूमि अगर बताते हुए यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करता है कि कैसे वो दुख को सहकर क्रूस के ऊपर उसकी मृत्यु होगी और कैसे वो पुनरुत्थान होगा तीसरे दिन उसका। What Peter tried to did is, he was trying to be faithful. He was not unfaithful or anything like that. He was showing
he was trying to show his love to Jesus Christ. यहाँ पर पतरस के बारे में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर विश्वास योग्य है, वो अविश्वास योग्य नहीं। वो यहाँ पर इस बात को कहकर अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति दिखाने की कोशिश करता है That, Lord, nothing is going to happen to you, but I would be there, I would defend you, or I'll not let anything of this happen to you. और प्रभु तुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, ये सारी घटनाओं में से कोई भी तेरे साथ नहीं होगी, ऐसा पतरस कहता है। But Jesus, he very firmly, he said, get behind me. और लेकिन यीशु ने बड़े ही उससे कहा कि हे शैतान, तू पीछे हो जा। He called him a Satan. और उसने शैतान कहा। That is a very big thing, that many a times it so happened that, I try to be like that. I, out of love, try to be very defensive for my Lord. I say that, no, nothing will happen, this and that. I can control the situations. और हो सकता है कि मेरे जीवन के अंदर भी इसी प्रकार से पतरस के समान मैं बहुत ही ये डिफेंसिव हो जाऊं और कहूं कि प्रभु कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा और परमेश्वर तू सब कुछ संभालेगा। And, before things happening or because of this pandemic, no, I'll be protective, nothing, though, all these things I can be protective, but then I can't hold what God wants to do in my life. और हो सकता है इस महामारी के अंदर मैं इस प्रकार कहूं कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी छुएगा नहीं, लेकिन हाँ जरूर ऐसा प्रभु कर सकता है, लेकिन प्रभु जो करना चाहता है उसको मैं अपने हाथों से उसको रोकूंगा नहीं, उसको रोकना नहीं चाहूंगा। All I wish for is to, sit back and I want to give Lord that steering and let him drive it off. और मैं गाड़ी के पीछे के भाग में बैठेंगे, वो स्टीयरिंग व्हील जो है परमेश्वर को देखकर कहूंगा कि प्रभु उस गाड़ी को चलाए। Whatever the situation currently are or whatever the situation is about to happen, I don't want to take any worries. I just want to have that faith and I just want to, express my love towards the Lord and I just want his will to happen in my life. जो कुछ हो रहा है केवल परमेश्वर के ऊपर मैं सारी बातों को सौंप दूं, किसी भी बात की चिंता किए बिना मैं ये चाहूं कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर केवल तेरी मर्जी पूरी हो जाए। And may Lord really take control of all the situation in our lives and, throughout the world, what is happening, what is surrounded by us, और संसार के अंदर आसपास हमारे जो कुछ भी हो रहा है, हमारे जीवन के अंदर सारी हालात या परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर सब बातों के ऊपर नियंत्रण ले। We absolutely know that he is the one to create and he is the one to destroy it. और हम बहुत ही निश्चित रूप से जानते कि वही सारी चीजों को रचने वाला, बनाने वाला, उसको नाश करने वाला वही है। And there is nothing apart from him. We serve the living God and he is the one to who will take care of us. और वही है जो जीवित परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वही हमारी चिंता करेगा। May Lord lead us. और प्रभु हमारी मदद करे। Yeah, brother. I thank God for what we heard today. और जो बातें आज सुनी उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। Something that I was like thinking this week was from Luke chapter 5 verse 11. लूका 5 अध्याय उसका 11 वचन। The end part where it says they left everything and followed him. और वहाँ पे उसके 11 वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। This is about where Peter tries to catch fish all night and he doesn't succeed in it. और यहाँ पर पतरस के बारे में हम सुनते हैं कि जिसे पूरी रात वो मछली पकड़ने का प्रयत्न करते हैं लेकिन कोई सफलता उसे नहीं मिलती है। And later when Jesus tells him to cast his net, they get a biggest catch. और उसके बाद जब यीशु उस नाव में आकर उसको बोलता है कि जाल को डाल और बहुत सारी मछलियां वो पकड़ते हैं। Later we see this verse where it's written they left everything and followed him. और वहां पे उस 11 वचन में पढ़ते कि सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे उसका पीछे चलने लगे। And further in Matthew 5 verse 28 again it's written about Matthew where it says he left everything behind and got up and began to follow him. और मत्ती 5 के अंदर मत्ती के बारे में भी लिखा है कि उसने सब कुछ छोड़कर वो यीशु का पीछा या उसके पीछे चलने लगा। So I was thinking about this verse. और मैं इस वचन के बारे में सोच रही थी। And these words are written about his disciples. और ये वचन जो है उसके चेलों के बारे में लिखी हुई है। And even God wants like me to be his disciple after believing his name and all. और जब मैं उसके नाम पर विश्वास करती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके एक शिष्य या चेले के समान बनूं। I was just thinking if I have this attitude of living behind everything and just follow him. ये मैं सोच रही थी कि ऐसा स्वभाव मेरे जीवन में होना कि सारी चीजें छोड़कर यीशु मसीह का अनुसरण करना या उसके पीछे हो लेना। The verse that came to my heart, like I was thinking on this was from Luke 14 verse 26. लूका 14:26।
In New Living Translation, it says, if you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else, your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. और वहां पे लिखा है कि लिविंग अनुवाद में कि हम अगर तुलना करें तो उस तुलना के अंदर और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई या बहन जो भी हो उसको हमें अप्रिय जानना है. So I have been a believer for like 7 or 8 years. और 7 और 8 वर्ष से मैं एक विश्वासी हूँ. So I was thinking, if I have this attitude of living behind everything, और मैं सोच रही थी कि क्या मेरे पास ये स्वभाव है कि सारी चीजें पीछे छोड़कर उसके पीछे चलने का. and like I still have people in my life, things in my life that I put ahead of God. और मेरे जीवन में आज भी ऐसे लोग, ऐसी चीजें हैं जो मैं परमेश्वर के आगे उनको रखती हूँ. Like a time when I choose my worldly pleasure, or I found that my self will is stronger than living a self-denial life. और मैं देखती हूँ कि मेरी जो खुद की जो स्वयं की इच्छा जो होती है या खुद की जो इच्छाएं जो होती है वो बहुत ही ताकतवर होती है, इसके बजाय कि मैं उस अपनी इच्छा का इनकार कर पाऊँ. I understood that I'm not carrying my cross in my daily life. और मैंने इस बात को समझा कि मेरे प्रतिदिन के जीवन के अंदर उस क्रूस को मैं नहीं उठा रही हूँ. One more verse that blessed me is from Philippians chapter 3. और फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय से और एक वचन से मुझे आशीष मिली. Verse 7, उसका 7 वचन, फिलिपियों 3:7, where Paul says that whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ. और पौलुस यहाँ पे कहता है जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया. मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ. So even I was praying to God that to give me this attitude where Paul had, that he could consider everything as rubbish as compared to when he had Jesus in his life. और मैं पौलुस के समान प्रार्थना चाहती हूँ कि मेरे जीवन के अंदर भी ऐसा स्वभाव आए कि मसीह को पाने के लिए सारी बातों को मैं पूरी तरह से कूड़ा या करकट समझूं. Amen. आमीन. प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के लिए जो हमने सुना. पिछले 2 हफ्तों से जो चीज़ें मैंने सीखी आप प्रभु ने मेरी लाइफ में अलाउ की, वो बातों से मैं बांटना चाहती हूँ. लास्ट 2 वीक पहले हमने संडे में वचन सुना था नम्रता के बारे में, और एक वचन जो लिजी आंटी ने बताया था मैथ्यू से, दैट कंसिडरिंग योरसेल्फ एज इनसिग्निफिकेंट. तो ऐसा हुआ कि मंडे को ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे याद दिलाया जो वचन हमने सीखा था. हमारे अभी अकाउंट्स में जैसे अभी क्लोजिंग चल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है हर जगह पर. तो मेरे एक जूनियर है हेड ऑफिस से, उन्होंने मुझे कॉल किया, किसी के बारे में उन्होंने मुझे मेल किया था, वो काम करना था और आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उसको कैसे करना था, और वो मेल मुझसे मिस भी हो गई थी, शायद मुझे पहले भेजी गई थी, और मैंने उनको कॉल किया कि मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, आप मुझे प्लीज़ गाइड करो. तो ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी, और बहुत सारी कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जो शायद उनको नहीं बोली चाहिए थी. एंड आई वाज लाइक, हाउ यू आर टॉकिंग टू मी, व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस. एंड उसके थोड़ी देर बाद मैंने फोन रख दिया, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू क्राई बिकॉज द वे ही वाज टॉकिंग टू मी एंड वेरी ह्यूमिलेटिंग वे ही वाज टॉकिंग. तो अचानक से मुझे वो वचन याद आया कि अभी कल ही तो हमने ये वचन सुना था कि कैसे यीशु मसीह का भी अपमान किया गया था. कि मतलब मैं इमेजिन करती हूँ कि सोच के देखिए कि कोई आपके ऊपर थूक रहा हो, आपको चाटे मारा, और वो भी किसके साथ, उसके साथ वो जो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, और हम उसके सामने क्या है, उसके साथ ये हुआ. और फिर भी प्रभु दीन रहा, चुप रहा, और उसके अंदर जो पीस था वो कहीं भी दूर नहीं हुआ, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ वो सारी चीजों से. और मैं देख रही थी कि मैं डिस्टर्ब हो गई थी, और मैं एकदम से जैसे रोने लगी और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई. और किरण उस रूम में थे उसी वक्त, और उन्होंने मेरे को पूछा क्या हुआ, मैंने उनको बताया. देन ही सेड कि चलो हम प्रार्थना करते हैं इस चीज के लिए, और हमने प्रार्थना की. और जैसे लूका 6:28 में लिखा है कि जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, तो हमने उसके लिए भी प्रार्थना किया जिसने मुझे इस तरीके से बिहेव किया, और उसको भी माफ किया कि प्रभु आप उसको भी ब्लेस करें. धन्यवाद कि उसने ऐसा किया और हम इस वक्त अभी प्रार्थना में बैठ पा रहे हैं. इस टूटे दिल के लिए भी धन्यवाद, उसकी वजह से ऐसा हुआ. तो सच में प्रभु ने अनुग्रह दिया मुझे, और एक शांति को मेरे अंदर डाला. और मैंने यही प्रार्थना किया, जैसे मार्क 4:37-38 में हम पढ़ते हैं कि
जब एक बड़ा आंधी तूफान था उस नाव में यीशु मसीह और उसके चेले थे, तो सारे चेले घबरा रहे थे, पानी भर गया था, बट लिखा है कि यीशु मसीह गद्दी लेके आराम से सो रहे थे। मतलब सोचने वाली बात है कि इतना आंधी तूफान है, पानी भरा जा रहा है, सब लोग घबरा रहे हैं, परेशान है, बट यीशु मसीह कैसे सो रहे हैं? तो परमेश्वर का जो शांति था, जो अश्योरेंस था, वो पिता में था। वो उसके आसपास कैसे सिचुएशन है, आंधी है, तूफान है, बट वो शांति हमेशा उसके मन में थी। और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे भी वो शांति चाहिए, क्योंकि आज जब हम आसपास देखते हैं बहुत ही अजीब तरह का माहौल है, चाहे वो दुनिया में जो भी हम देख रहे हैं, घबराहट है, तकलीफ है, बहुत कंफ्यूजन है, और ऑफिस में प्रेशर है, बहुत सारी चीजें हैं, ब्लेम लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, ये सारी चीजें चल रही है लॉर्ड। बट ये सारी चीजों में मैं चाहती हूँ कि आपकी शांति प्रभु मेरे अंदर रहे, और ये सारी चीजें मुझे डिस्टर्ब ना करें। किसी के फोन कॉल अगर आते हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, तो वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ऐसा किया और वो शांति मुझे दी, क्योंकि और ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद फिर किसी का कॉल आया और वो बहुत गुस्सा हो रहे थे मुझ पर किसी चीज के लिए, बट मैंने उनको समझाया उस बारे में कि वो काम ऐसे है, वैसे क्यों डिले हुआ ये सारी। और उसके बाद प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने वो शांति को मुझ में बने रहने दिया। और किरण ने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि ऐसा हुआ, बट आज वो शांति मैं मेरे अंदर महसूस कर पा रही हूँ। आज मुझे वो डिस्टर्बेंस नहीं है जो शायद 2-3 दिन पहले थी, पर आज नहीं है वो, तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और सच में ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है कि हम परिस्थितियों से ऊपर उठकर उस शांति को महसूस कर सके, यीशु मसीह के समान, जैसे वो आंधी तूफान में वो कर पाया। और एक चीज और जो प्रभु ने मुझे दिखाई, मेरे अंदर वचन में लिखा है कि हर एक बात के लिए धन्यवाद करो, और यही मसीह यीशु में उसकी हमारे लिए इच्छा है। बट मैं देख पा रही थी कि हमारा वर्क प्रेशर काफी ज्यादा हो रहा है, मुझ पर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हो रहा था। बट मैं देख रही थी कि मैं इवन तो ये फैक्ट है कि वर्क प्रेशर है, बट मैं बार बार वर्क प्रेशर के बारे में ही बात कर रही थी। मैं किरण से भी बात कर रही है, कोई फोन कॉल भी आ रहा है तो मैं यही बोल रही हूँ बहुत वर्क प्रेशर है, बहुत वर्क प्रेशर है। तो मैं देख पा रही थी कि मैं जो मेरा मैं इवन तो मैं फैक्ट बोल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग मोड में मैं बोल रही हूँ। और बाइबल कहती है कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, विदाउट ग्रम्बलिंग हमें रहना है। और मैं देख पा रही थी कि प्रभु मैं एक कंप्लेनिंग मोड में जा रही हूँ बार बार, भले मैं फैक्ट बोल रही हूँ, बजाय इसके कि मैं प्रभु आपको धन्यवाद करूं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी जॉब को खो दिया, बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में वो गुजर रहे, पर प्रभु एटलीस्ट ये जॉब हमारे पास है। प्रभु आप अनुग्रह दे रहे इस काम को करने के लिए, भले ही प्रेशर है प्रभु, पर तो मुझे उस कंप्लेनिंग मोड से हटकर प्रभु मुझे धन्यवाद की ओर बढ़ना है। जैसे हमने बच्चों की मीटिंग में भी सीखा था, मेरी सिस्टर ने बांटा था कि भले ही बहुत सारी चीजें जो होती है हम जो लाइक नहीं करते हैं, ऐसी भी चीजें अगर प्रभु अलाउ करते हैं तो हमें धन्यवाद करना है, कंप्लेंट नहीं करना है, यही प्रभु की इच्छा है। तो प्रभु मुझे यही सिखा रहे थे कि मैं धन्यवाद करूं, और जब मैं धन्यवाद करूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं देख पाऊंगी कि वो शांति, वो आनंद मेरे अंदर बढ़ेगा। और जब मैं कंप्लेनिंग मोड में स्विच करूंगी तो मैं खुद परेशान होना चालू कर दूंगी, और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरे बिहेवियर में, हस्बैंड के साथ या बाकी लोग के साथ। तो प्रभु ने मुझे सिखाया कि हमेशा हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है। और सच में प्रभु कितना भला है, प्रभु ने कितनी अद्भुत बातों को हमारे जीवन में अलाउ किया है, प्रभु ने हमें बचाया है। तो वो चीजें देखने के बजाय कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, बट जो प्रभु ने अलाउ, जो सुंदर बातें प्रभु ने अलाउ की, उसके लिए धन्यवाद करना है। और इन कठिन परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद करना है, क्योंकि यही परिस्थितियां हमें सिखाएंगी कि हमें कैसे उस कंप्लेन और ग्रम्बलिंग एटीट्यूड से फ्री होना। इवन दो हर तरह से प्रेशर है, फिर भी मुझे यीशु मसीह के समान उस नाव में कैसे आराम से सोना है। तो धन्यवाद उन तूफानों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद करने की, प्रभु धन्यवाद इन तूफानों के लिए, क्योंकि इन्हीं तूफानों में मैं सीख पाऊंगी कि मुझे कैसे यीशु मसीह के समान आराम से सोना है और अपने पिता में मुझे हमेशा सिक्योर रहना है। तो धन्यवाद इन सारी बातों के लिए जो प्रभु इन दिनों में मुझे सिखा रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज जो वचन सुनाए। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ रेवलेशन में, रेवलेशन 14 का 3, 4 और 5 कोई हिंदी में पढ़ना। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 3, 4 और 5। वहां लिखा है, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए और कुंवारे हैं। ये वही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं।
उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था और वे निर्दोष है। स्वर्ग में अनेक लोग है, हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा नीचे ऐसा लिखा है कि इतना भीड़ है कि कोई गिन नहीं सकता, इतना ज्यादा लोग मेमने के सामने खड़ा है। मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में से एक छोटा एक 1% या छोटा सा एक झुंड है जो परमेश्वर के लिए बहुत विश्वास योग्यता से इस पृथ्वी में खड़ा था। तो मैं सोचता था कि उन लोग के अलावा, उधर लिखा है कि उन लोग के अलावा वो जो गीत स्वर्ग में जाते, उन्हें एक नया गीत है, उन लोग के अलावा और कोई भी नहीं गा सकता था। तो वैसा है मुझे स्वर्ग में प्रवेश करना है। ऐसा नहीं कि जो बाकी लोग थे झुंड में, बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह का लहू से पाप धो के यीशु के सामने खड़े हैं, उनके अलावा ये जो लोग हैं, इनका खासियत ये है कि उन्होंने अपने आप को कोई स्त्री के साथ मलिन नहीं किया। इसका मतलब उन लोग दुनिया से पूरा अलग थे। उन लोग कभी भी दुनिया के साथ अपने आप को मलिन नहीं किया। जैसे आपने आज सुना कि याकूब में लिखा है कि हे व्यभिचारियों, तुम दुनिया से प्रेम नहीं करना। तो अगर मैं दुनिया के साथ प्रेम करता हूँ, या दुनिया का रीति, दुनिया मतलब दुनिया के लोग नहीं, लेकिन दुनिया का जो रीति है, दुनिया का रीति बोलेगा तो हम लोग को मालूम है दुनिया में जो है जो लस्ट ऑफ द फ्लैश यानी शरीर का अभिलाषा, लस्ट ऑफ द आईज आंखों का अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीन चीज जो दुनिया में है, आंखों का अभिलाषा या शरीर का अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीन चीजों से जो अलग रहते हैं। यानी आंखों का अभिलाषा बोलेगा तो जो देखता हुआ चीज या मेरा आंखों से देखता हुआ चीजों के पीछे मैं नहीं पड़ता हूँ, लेकिन परमेश्वर को जो पसंद है वो चीज मैं चाहता हूँ। शरीर का अभिलाषा बोलेगा तो जो पाप मेरा शरीर मेरे को खींचता है, उसके विरोध में मैं लड़ाई करके उसके तरफ नहीं, मैं परमेश्वर की तरफ जोड़ता हूँ। और जो जीवन का घमंड यानी जो जीवितता का घमंड हिंदी में लिखा है, जो जीवन में मैं कुछ हूँ या तो मैं दूसरे से बड़ा हूँ, बड़ा होने का जो विचार है उसके विरोध में मैं हूँ। ये दुनिया का पूरा जो रीति है, सिस्टम है, उसके विरोध में जो खड़े हैं, उन लोग को दुनिया ने अशुद्ध नहीं किया। दुनिया का जो रीति है, दुनिया का जो सोच है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि हम लोग दुनिया के सदृश न बनो, लेकिन अपना मन को नया करो। तो दुनिया का सोच के साथ मैंने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ मैंने अपना मन को नया करके यीशु का जो दुल्हन का जो स्वभाव है, यीशु का जो मन है, वो मैंने पाया है। वैसा लोग है। और दूसरा बात उधर लिखा है कि उन लोग दे वर परचेस्ड, उन लोग परमेश्वर ने खरीदा हुआ लोग है, लेकिन उन लोग अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को दिया हुआ लोग है। उन लोग ऐसा नहीं कि आधा तरफ से दिया है, लेकिन पूरा परमेश्वर। और जिधर जिधर मेमना जाता है, जिधर जिधर जो मेमना जाता है, यीशु जाता है, उधर सब उन लोग जाने के लिए तैयार है। ऐसा लोग है जो 100% यीशु के लिए अपने आप को समर्पित किया है। और लास्ट में लिखा है उनका मुंह में एक भी झूठ नहीं था और पूरा निर्दोष। उनका जीवन में कोई भी क्षेत्र देखेगा, या तो उनका ऑफिस का लाइफ होने दो, घर का लाइफ होने दो, कोई भी क्षेत्र में उन लोगों का कोई भी दोष लगाने वाला कोई भी बात, मतलब परफेक्ट नहीं थे, पर जिधर जिधर उनको छोटा चीज में उनका विवेक में कोई भी कमी दिखता था, तुरंत परमेश्वर के सामने कबूल करके उन लोग का कोई भी हर दिन कोई भी बिना दोष से, बिना विवेक में कोई कुछ भी ऐसा परमेश्वर और उनके विरोध में कुछ भी नहीं है, ऐसा जीवन हर दिन जी के उन लोग ने जिया। इसलिए ऐसा विश्वास योग्य लोग के लिए परमेश्वर बोलता है कि उन लोग स्वर्ग में एक नया गीत गाएंगे, जो बाकी लोग हैं स्वर्ग में ही है लेकिन उन लोग नहीं गा पाएंगे, वैसा इन लोग को गा सकते हैं। ऐसा वैसा एक इच्छा हमारा दिल में, जो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उससे प्यार करता है वो उसका आज्ञाओं को मानता है। तो मेरा जो परमेश्वर का आज्ञाओं को मानने का, नहीं तो ओबे करने का, नहीं तो कमांडमेंट्स को ओबे करने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, वो लव का रिलेशन में मैं होना चाहता हूँ। उसके लिए परमेश्वर का जो प्यार है, खास करके पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह को अपना इकलौता पुत्र को क्रूस पर मेरे लिए मरने के लिए दिया, ऐसा कोई भी पिता नहीं हो सकता है कि अपने बेटे को कोई मार रहा है और वो चुपचाप, जब वो बचा सकता है फिर भी वो नहीं बचाता है, उधर मारने के लिए, सबको इंसल्ट करने के लिए, इतना अपमानित होने के लिए, उधर अपने आप अपना खुद का बेटे को देने के लिए, इतना गहरा प्रेम हम जब पहचान जाएगा तो वो प्रेम से भरने के लिए, और उस प्रेम के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो प्रेम हमारे अंदर उंडेल कर वो वचन को मेरा जीवन में पालन करने के लिए मैं इच्छा करता हूँ।
हेलो। हाँ हाँ सुन पा रहे ब्रदर। हाँ प्लीज लॉर्ड, सभी को दोनों से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बात सकूं। हम देखते हैं हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कभी अप्स एंड डाउन आते हैं, परंतु जब तक हम प्रभु में बने रहते हैं, जैसे वचन हमें कहता है कि जो डाली वो बना रहता है जो प्रभु में, वो अपने ऋतु में जिस प्रकार वो उसमें बना रहने के कारण उसमें उसके पत्ते का ना तो मुरझाते हैं और समय पर उसमें फल और फूल आते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रभु के बाद जाते हैं, हमारा ज्ञान प्रभु में पहुंच जाता है और हमारी परेशानियां बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात देखते देखते थक जाते हैं, आंखें हमारी पथरा सी जाती है, परंतु जब हम प्रभु की ओर निहारते हैं, जिस प्रकार राजा देव कहता है अपनी इन बातों में कि मैं यहोवा की ओर अपने उस पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाता हूँ या उसकी ओर देखता हूँ और मुझे उत्तर मुझे मेरी सहायता कहाँ से आएगी कैसे प्रश्न करता है, परंतु वो विश्वास के साथ भी कहता है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से होगी। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में बातें करता है और हमें भानस के साथ धीरे आगे बढ़ाता है, तो हम परमेश्वर में और भी आशा के साथ और भी आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार मैं जिस परिस्थिति में हूँ वहां से तो वो मुझे और भी हियाव देता है। जिस प्रकार यजकेल की किताब 37 का 11 पद में हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी हड्डियां जमीन पे पड़ी हुई थी, परंतु वह यजकेल नबी के द्वारा प्रभु ने उसे भविष्यवाणी करने के लिए उसे बोला और उसने उन हड्डियों में से नसें मांस सब तैयार होने लगी। अर्थात अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, अगर हम मर भी जाए तो भी परमेश्वर हमें उन कब्रों में से निकाल कर लाएगा। तो जिस शिक्षा योजना या जिस उद्देश्य से हमें प्रभु ने चुना है वो हमारे द्वारा पूरी करके वो हमारे जीवन में हो कार्य करने के बाद ही हम प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। और ऐसे ही जब तक एक पिछले सप्ताह हम वचन सुन रहे थे लूका के अध्याय 5 और 22 पद में जो याजक था, जो उस पद में नियुक्त था, फिर भी वो ढालस और धीरज के साथ वो प्रभु की बात जो रहा था और वो एक ऐसे पद में था जहाँ पे वो प्रभु की निरंतर सेवकाई करता था और पूरे हृदय की शुद्धता के साथ हर वो चीज जो प्रभु की दृष्टि में सही है उचित वो करता था। परंतु वो निसंतान था और वो उसके जीवन में प्रभु ने उसके बाद जो ना उसके हियाव को देखते हुए वो समय आ पहुंचा जब वो मंदिर में सेवकाई के लिए गया, तब उसे स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और उसके एक शुभ समाचार सुनाया और उसके उस निराशा भरी जीवन में भी प्रभु ने आशा भरी। जब वो उस अवस्था तक पहुंचे गए थे जब कि उनकी उस आयु में ना तो उन्हें संतान हो सकती थी ना ही उसके अब वो आशा पूरी रीति टूट चुकी थी, परंतु जब हम पूरी रीति से टूट जाते हैं प्रभु हमें आशा भरी एक ऐसी आशा को देता है जब हम उसकी और भी उत्साह के साथ बढ़ सकते हैं। ऐसे ही इस दोनों दंपति के जीवन में हुआ और प्रभु का आशीष आया और उन्हें उनके जीवन में प्रभु ने आशीष किया। उस जिब्राइल स्वर्गदूत के माध्यम से प्रभु ने वो संदेश भेजा। आज भी आपके और मेरे जीवन में जो आज जोड़ते हैं प्रभु को, प्रभु के निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं और उसके आने का बाद जोड़ते हैं, परमेश्वर उनके लिए वो शुभ संदेश जो हम नए नियम के यीशु मसीह के द्वारा हमें जो मिला है और उस वाक्य के द्वारा हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें उन वचनों के द्वारा प्रभु के दासों के द्वारा जब हम वचन सुनते हैं और दिन प्रतिदिन नए होते जाते हैं और भी सिद्ध बनाते जाते हैं पर उस वचनों के द्वारा। इसलिए
हमें निरंतर प्रभु की बाट जोतते रहना और कभी भी अपने जीवन में निराशा नहीं आने देना है। और जब तक कि हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम प्रभु की बाट जोड़ने पाए और प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति दे। जब हम पूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप हैं या समर्पित कर देते हैं, जब प्रभु हमारे हृदय से हमारे द्वारा कार्य है तो हम अद्भुत रीति से उन बातों को देखते जो हमारे द्वारा नहीं हो सकता। हालेलुया। और इसी मध्य में एक छोटा सा कोरस में गाना चाहूंगा जो मेरे जीवन को उत्साहित कर रहा था। और सुबह को मैं भाई के साथ इसके साझा कर रहा था। जब प्रभु को हम अपने जीवन को देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। एक छोटा सा कोरस है जो मैं प्रभु ने मुझे कल वचन पढ़ने के द्वारा अगुवाई कर रहा था और मैं सुबह भाई के साथ इसके साथ शेयर कर रहा था। उसे छोटा सा कोरस गा के प्रभु की महिमा करना चाहूंगा। हालेलुया। सौंप दो जिंदगी को यीशु का प्यार कहता है। सौंप दो जिंदगी को यीशु का प्यार कहता है। क्यों न जियो ये जीवन यीशु के लिए, जो सौंप दिया ये जीवन यीशु के लिए। क्यों न जियो ये जीवन यीशु के लिए, सौंप दिया ये जीवन यीशु के लिए। आमीन। इस छोटी सी करो से प्रभु आशीष दे। Yeah, I was listening to, all, especially when Titus started, it's about, what's conscience, like when you're reporting something and saying something. और मैं बहुत ही आशीषित हुआ आज जो बातें मैंने सुनी, खासकर जैसे टाइटस ने शुरुआत किया कॉन्शियस के बारे में और किस प्रकार हमारे मैनेजर या रिपोर्टिंग के बारे में हम लोग किस प्रकार व्यवहार करते हैं। See, when I started working 30 years ago, one guy told me, like, you never say no to a work and you never do that work also. और मैं 30 साल पहले जब मैंने काम की शुरुआत की तो इस प्रकार कहा कि तुम्हें कभी किसी काम के लिए मना भी नहीं करना और उसको करना नहीं है। So, no, but it was easy, when in a world it was like it was fun and it was good, but when you come to Christ, things that you do wrong hurt you. और लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो चीजें बदल जाती है। The things that we do wrong, it hurts us. और जो बातें हम गलत करते हैं वो हमको चोट पहुंचाती है। Like Bible always says, like we look unto Christ, not any other thing, but look unto Christ. बाइबल हमें हमेशा बताती है कि किसी भी और चीज को नहीं देखना है, लेकिन केवल मसीह यीशु की ओर हमको ताकते रहना है। Voice is not coming. Can you hear me now? Yes, now can hear. Yeah, it's Luke. If you read chapter 2 of Luke, it speaks of boy Jesus. और यहाँ पे लूका उसके 2 अध्याय के अंदर यीशु मसीह जो एक लड़का था उसके बारे में वहां पर बात करता है। लूका उसका 2 अध्याय। So, like when they go for the festival, the Passover festival, and when the parents are coming back and they can't find Jesus, so they go back to the temple. और जब यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ उस पर्व के अंदर जाता है और वो उसके माता पिता उसको फिर ढूंढने जाते हैं और फिर वो मंदिर में पाया जाता है उस पर्व के समय पर। And when they ask him, how can you do that to us? We are going back home and you are not there with us. और उस माता पिता उसको कहते हैं कि ऐसा तू कैसे कर सकता है, हम लोग वापस घर गए और वापस तुझे ढूंढने के लिए वापस आए। So only one thing he says, did you know, like, you'll find me where my father's work is. Will find me where my father's work is. It's in the ERV version.
और वहां पर वो कहता है कि उस ERV वर्जन में आप मुझे वहां पाओगे जहां मेरे पिता का कार्य है. And another version says, KJV says, the family were my father's businesses. और KJV अनुवाद में इस प्रकार कहता है कि मेरे पिता के व्यवसाय के अंदर इस प्रकार के शब्द वहां इस्तेमाल किए गए. So the thing is, where was Christ found? Because Christ was found where the work of the Father was going on. और यीशु मसीह कहाँ पाया गया? जहाँ पिता के कार्य चल रहे थे वहां पर. From that seed was there from when he was small till the days of his life. He was more where the Father's work was. He was not anywhere else. His heart and mind was on the Father's work. और वो बीज जो है वो यीशु मसीह के बचपन से उसके अंदर उसके अंत तक था. वो कहाँ पाया गया? उसके हर एक जीवन के दिनों में जहाँ पिता था, पिता का कार्य जहाँ पर था, वहीं पर यीशु मसीह पाया गया. And Christ says, no, you learn from me. Like we have to learn from Christ. और यीशु मसीह कहता है कि मुझसे तुम सीखो. हमें यीशु मसीह से सीखना है. So we have to also be aware everywhere, every time in life. You have to be aware where the Father's work is, where Christ was working. और हमें हर जगह कौन सी जगह पर कौन से क्षेत्र में होना है जहाँ यीशु मसीह या हमारा पिता है, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर हमें वहां होना है. Not be distracted by the world or worldly things or things happening. और हमारे आसपास संसार और संसार में जो बातें हो रही है उन चीजों से हमें विचलित नहीं होना है. But we really dedicated and our hearts totally belong to Christ. हमारे हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना है, वो उसी को हमको दे देना है. Nitesh was sharing about the pandemic. और महामारी के बारे में हम लोग जैसे बात करते हैं. Nitesh was sharing about the pandemic, this corona thing going on. और नीतीश ने जैसे महामारी के बारे में बात किया. So one thing, like you learn this. One easy thing that was, God has taught us from this pandemic is, और एक बहुत ही आसान चीज जो इस महामारी से परमेश्वर ने जो हमको सिखाई वो ये है. Like if you see, like there's a lot of things, they say when you're going out, you touch anywhere, wash your hands. You go outside and you come back, remove your clothes, keep it for washing. First wash yourself, और जैसे महामारी में हम लोग जिसे करते, कुछ भी बाहर हम जाते, कुछ छूते तो तुरंत घर पर आकर हम अपने हाथों को धोते हैं या फिर कहीं से बाहर आकर हमारे कपड़ों को बदल कर अपने आप को हम पूरी तरह से साफ करते हैं. That we do not touch anything that is, like is likely to give us that disease, and if we think it is, first can wash ourselves. और हम ऐसी कोई चीज को हम छुए नहीं जिससे कि वो जो उसका संक्रमण हमको लग जाए और इससे हम अपने आप को पूरी तरह से धोए या साफ करें. The same thing, Christ is saying, it says in the Bible for a long time that, we should cleanse ourselves every day, shouldn't be attached to this worldly things or do something wrong. But even if we do, first repent and cleanse ourselves, set things right. और यही बात परमेश्वर के वचन में बहुत पहले से लिखी गई है कि कोई भी बात संसार और संसार की बात में हमको उसको छूना नहीं. अगर हम गलती से छू भी देते तुरंत उसको मन फिराना है, साफ करना है, उसको पूरी तरह से मन फिराना है. And then get ready, get back to that work of God. We found that place of God only. और हमें उस परमेश्वर के कार्य में वापस लौट आना है जो उसी जगह पर. May God really help us, like every day we may learn more of Him. We find that presence daily with Him. और प्रभु हमें सच में हमारी सहायता करे ताकि उसकी उपस्थिति हम प्रतिदिन हमारे जीवन में प्राप्त कर सके. One thing Brother Abu was sharing, I think 1 or 2 weeks back about Samuel. और भाई अबू कुछ बात कर रहे थे पिछले दिनों के अंदर कि शमूएल के बारे में. Samuel used when he was small, he heard the voice of God, but he couldn't understand. Every time he should run to Eli, did you call me? But he says, Eli told him, just say, God, I'm listening. Your servant is available and listening to him. और जब शमूएल छोटा था उसने बार बार परमेश्वर की आवाज को सुना. वो एलियाजर के पास जाता है. एली ने उससे कहा कि जब तो आवाज को सुने कहना कि हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है. So same thing in our lives also. God, be ready that God, I'm listening. Not first as I stop talking, but God, I want to listen. Listen and listen to you. और उसी प्रकार हम परमेश्वर के प्रभु में बात करना बंद करके प्रभु मैं केवल तुझे केवल सुनना ही चाहता हूँ. And second thing is having that simple faith. About what Sham was speaking about temptation. और जैसे श्याम ने बताया कि एक सरल एक विश्वास होना परीक्षणों के बारे में जब उसने बताया. Many things coming to our hearts, the trials coming to in our place.
और बहुत सारी चीजें हमारे हृदय से जब बाहर आती है. This see one thing about speaks about David. When David confronted Goliath, he had only that sling and the stones. और एक चीज जो दाऊद के बारे में जब गोलियत का सामना उसने किया तो उसके पास वो पत्थर और गोफन ही था उसके पास. They had given him all the things, the armor, but he was small and he couldn't carry the weight. But that just sling and the stones were easy for him. और शाऊल जो था उसने उसके सारे अपने शस्त्र हथियार उसको दिए लेकिन वो नहीं पहन पाया, लेकिन बहुत आसान उसके पास उसका गोफन और पत्थर ही थे. So it's the same thing, is that simple faith in God and obeying Him. Those are the best weapons to defeat any situations or trials or any untoward incident. और कोई भी परिस्थिति या कोई भी परीक्षण को हराने के लिए बहुत ही सरल जो हथियार हमको दिए गए हैं वो हमारा सरल विश्वास जो है परमेश्वर के प्रति उसको रखना है. May God really help us. सच में परमेश्वर हमारी सहायता करे. Amen. आमीन.